کیا آپ جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز اور استغفار میں وہ کون سے 8 معجزاتی فارمولے چھپے ہیں جو آپ کی ناممکن سے ناممکن دعا کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کی سوچ اور زندگی دونوں کو بدل دینے والی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش کہ ویڈیو کو لائک کامنٹ شیئر ضرور کریں۔ اکثر لوگ اس ڈر سے لائک نہیں کرتے کہ ان کا نام شو ہوگا، تو بالکل بے فکر رہیں، لائک مکمل پرائیویٹ ہوتا ہے، اس لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں تاکہ یہ نیکی آگے پہنچ سکے۔ آپ جتنا لائک کرتے ہیں تو ویڈیو کی ریچ بڑھتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ شکریہ۔ اگر آج آپ کی زندگی میں ایسی پریشانیاں ہیں جو حل نہیں ہو رہی، دل میں ایک نامعلوم بے چینی ہے، یہ کوئی ایسی دعا ہے جو آپ مدت سے مانگ رہے ہیں اور وہ قبول نہیں ہو رہی، تو یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ ہم اکثر ایسے مسائل کا حل غلط جگہوں پر تلاش کرتے ہیں، ہم لوگوں سے شکایتیں کرتے ہیں یا پھر خود کو تھکا دیتے ہیں، لیکن کائنات کا قانون یہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا نقطہ، تہجد پلس ذکر الہی۔ آج کی اس مصروف دنیا میں اگر ہم سب سے زیادہ کس چیز کی تلاش میں ہیں تو وہ دل کا سکون ہے۔ گاڑی، بنگلہ، پیسہ، عزت، یہ سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن دل پھر بھی کسی نامعلوم کھوکھلے پن کا شکار رہتا ہے۔ لوگ نفسیاتی امراض کا شکار ہو رہے ہیں، ڈپریشن بڑھ رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ دل جسے صرف سکون چاہیے تھا وہ خالی ہے۔ اب آئیے اس فارمولے کو سمجھتے ہیں۔ ذکر الہی کیا ہے؟ ذکر الہی صرف تسبیح پر کوئی کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ ذکر کا مطلب ہے یاد رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنو، اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنی کمزوری کو اللہ کی طاقت سے جوڑ دیتے ہیں۔ ذکر جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا پھر درود شریف، یہ سب دراصل آپ کے دل کی غذا ہے۔ جیسے جسم کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے ویسی روح کو ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر روح پیاسی رہے گی تو دل کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ تہجد اور ذکر کا امتزاج۔ اب ذرا سوچیں، آپ کے پاس ذکر کی طاقت ہے، لیکن اب آپ اسے تہجد کے وقت استعمال کر رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب کائنات میں خاموشی ہوتی ہے، آپ کا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی فون کال، کچھ بھی آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان نہیں ہوتا۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز پر بیٹھتے ہوئے خاموشی سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر تسبیح کے دانے پر آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تہجد کے وقت جب آپ کے لبوں پر سبحان اللہ، اللہ پاک ہے آتا ہے تو آپ کا دل کائنات کی تمام گندگیوں اور ناپاکیوں سے پاک محسوس کرنے لگتا ہے خود کو۔ جب آپ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہتے ہیں تو آپ کے دل سے ناشکری اور گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کہتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کی پریشانی کتنی چھوٹی اور آپ کا رب کتنا بڑا ہے۔ یہ ہے وہ روحانی، یہ ہے وہ معجزاتی ملاپ جس سے دل کی گہرائیوں سے خوف اور اندیشے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ واقعی وہ قلبی سکون چاہتے ہیں جس کے لیے دنیا کے لوگ کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر
इस एक फार्मूले को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तहज्जुद में उठें, नमाज़ पढ़ें और फिर कम से कम 10 से 15 मिनट मुकम्मल खामोशी और तवज्जो से अल्लाह का ज़िक्र करें। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका दिल जैसे पानी की तरह साफ़ और पुरसुकून हो गया है। नंबर 2, तहज्जुद प्लस इस्तिग़फ़ार। हम इंसान ख़ता के पुतले हैं। हमसे जाने अनजाने में इतने ही गुनाह हो जाते हैं कि जिनका हिसाब रखना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं रहता। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि हमारी दुआएं इसलिए कबूल नहीं हो रही, हमारी रोज़ी में बरकत इसलिए नहीं है, या ज़िंदगी में बार बार रुकावटें इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमारे अपने गुनाह हमारे और हमारी खुशियों के दरमियान दीवारें बन चुके हैं। गुनाह की मिसाल एक ऐसे बोझ की सी है जो इंसान के कंधों पर रखा हुआ होता है और इंसान को अंदर ही अंदर थका देता है, उसके अंदर की खुशी को निचोड़ लेता है। और इस बोझ से आज़ादी का फार्मूला क्या है? तहज्जुद प्लस इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार का असल मफ़हूम, इस्तिग़फ़ार सिर्फ ज़बानी तौर पर अस्तग़फ़िरुल्लाह कह देने का नाम नहीं है। इस्तिग़फ़ार का मतलब है अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना, नादिम होना, अपने रब से ढांप लेने की इल्तिजा करना और ये अहद करना कि ऐ अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, मैं भटक गया था, लेकिन अब मैं वापस तेरे पास आ गया हूँ। ला रैब बेऐब किताब कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह नूह में फरमाते हैं, बस मैंने कहा कि अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला है। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, रात का आखिरी पहर है, दुनिया की हर आँख बंद है, खामोशी का राज है, और ऐसे में आप अपने गुनाहों का बोझ लिए जाए नमाज पर झुके हुए हैं, आपके हाथों में तस्बीह है या आपके हाथ दुआ के लिए उठे हुए हैं और आप सच्चे दिल से पुकारते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अस्सअलुहु तौबा, या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये वो वक्त है जब अल्लाह पाक अपने बंदे पर सबसे ज़्यादा मेहरबान होता है। हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह ताला सहर के वक्त फरिश्तों के सामने अपने इन बंदों पर फ़ख्र फरमाता है जो अपने गर्म बिस्तरों को छोड़कर उसकी माफ़ी के तलबगार होते हैं। जब आप तहज्जुद के वक्त इस्तिग़फ़ार कर रहे होते हैं तो गोया आप अपने रब के आगे अपने तमाम गुनाहों का एतराफ़ करके उसकी रहमानियत की पनाह ले रहे होते हैं। और कुरान में अल्लाह ताला लोगों की तारीफ़ करते हुए फरमाता है, और वो रात के आखिरी हिस्सों में इस्तिग़फ़ार करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी रुक गई है, अगर आपको अपने माज़ी के गुनाहों का बोझ सोने नहीं देता, तो आज ही से तहज्जुद के वक्त इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बना दें। जब गुनाह माफ़ होते हैं तो रास्ते की तमाम रुकावटें खुद ब खुद हट जाती हैं और दिल पर सुकून का साया हो जाता है। नंबर 3, तहज्जुद प्लस कुरान मजीद। हम अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मोड़ पर अक्सर उलझन का शिकार हो जाते हैं। क्या फ़ैसला करूं? कौन सा रास्ता सही है? किस पर भरोसा करूं? बाज़ औक़ात ज़िंदगी का कोई मोड़ इतने अंधेरों से घिरा होता है कि अकल काम करना बंद कर देती है और कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। यही वो वक्त होता है जब इंसान को हिदायत यानी दुरुस्त रहनुमाई की ज़रूरत होती है। और हिदायत का सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा है? वही किताब जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, परहेज़गारों के लिए हिदायत है। कुरान मजीद ज़िंदगी का रोड मैप। कुरान सिर्फ सवाब के लिए तिलावत करने वाली किताब नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का मुकम्मल नक्शा और रोड मैप है। आपका जो भी मसला, चाहे वो ज़हनी तनाव हो, वो रिश्तों की उलझन हो या मुस्तकबिल का खौफ हो, कुरान के सफ़हात में हर सवाल का जवाब मौजूद है। तहज्जुद के वक्त
कुरान की तिलावत का असर। आप ज़रा सोचिए, जब दिन का शोर ख़त्म हो जाए, दुनिया की तमाम आवाज़ें खामोश हो जाएं और आप तहज्जुद की नमाज़ के बाद कुरान पाक खोल कर बैठें। तहज्जुद के वक्त का माहौल इंसान का जहन बिल्कुल साफ और दिल बिल्कुल हाजिर कर देता है। ये वो माहौल है, ये वो सुकून है। और तहज्जुद के वक्त जब आप तर्जुमे और तदब्बुर के साथ कुरान का एक एक सफ़ा पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे अल्लाह ताला बराह रास्त आपसे मुखातिब है, जैसे वो आपके हालात का जवाब दे रहा है। कुरान पाक में इरशाद होता है, बेशक रात का उठना नफ्स को सख्ती से कुचलता है और बात को ज़्यादा दुरुस्त और सीधा रखता है। रात का वो आखिरी हिस्सा ऐसा होता है जब कुरान की आयत दिल पर गहरा असर करती हैं। आपके जहन से शुकूक व शुबहात ख़त्म होने लगते हैं, सही और गलत का फ़र्क वाज़ेह होने लगता है और अल्लाह ताला आपके दिल में वो बसीरत पैदा कर देता है जिससे फ़ैसले करना आसान हो जाता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में भटक रहे हैं, अगर फ़ैसलों में उलझन का शिकार हैं, तो रात की तन्हाई में तहज्जुद की नमाज के बाद चंद आयत ही सही लेकिन तर्जुमे के साथ पढ़कर देखिए, आपको अपनी हर उलझन का जवाब उसी वक्त मिल जाएगा। तहज्जुद प्लस दुआ, ये हिस्सा उन लोगों के लिए है जो हलाल मोहब्बत के हुसूल के लिए परेशान हैं, जो निकाह के लिए परेशान हैं। इंसान के दिल की ज़रूरत है मोहब्बत। इंसान चाहता है कि उसे कोई ऐसा साथी मिले जो उसको समझे, उसका एहतराम करे और उसके साथ एक पाकीज़ा बावकार ज़िंदगी गुजारे। लेकिन आज के दौर में मोहब्बत के नाम पर फ़रेब, दिल शिकनी और गुनाह आम हो चुके हैं, जिनका अंजाम सिर्फ दर्द और पछतावे के सिवा कुछ नहीं निकलता। इस्लाम हमें सच्ची, पायदार और पुरसुकून मोहब्बत का रास्ता दिखाता है। वो है हलाल मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जिसमें रब की रज़ा शामिल हो, जिस पर अर्श से बरकतें नाजिल होती हों। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक पाकीज़ा रिश्ता चाहते हैं या अपने मौजूदा हलाल रिश्ते में सुकून, उल्फत और मोहब्बत की जोत जगाना चाहते हैं, तो इसका सबसे ताकतवर फार्मूला तहज्जुद प्लस दुआ है। जब आप किसी इंसान को चाहते हैं तो लोग दुनिया के सामने गिड़गिड़ाते हैं, मिन्नतें करते हैं या गलत रास्ते इख्तियार करते हैं, लेकिन एक मोमिन का तरीका ये है कि वो मखलूक के सामने हाथ फैलाने की बजाय खालिक के सामने अपना दामन फैलाता है। तहज्जुद में मांगी गई दुआ की तासीर। तहज्जुद वो वक्त है जब बंदा अपने दिल के तमाम राज अपने रब के सामने खोल कर रख देता है। वो खुश नसीब जो रात के अंधेरे में सजदे में सर रख कर आँखों में आंसू लिए अपने रब से अपनी मोहब्बत या एक अच्छी शरीक हयात की इल्तिजा करता है। अल्लाह ताला उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है जिसका मफ़हूम है कि जो दुआ तहज्जुद के वक्त मांगी जाती है वो तीर की तरह सीधी अपने निशाने पर लगती है और कभी खाली नहीं जाती। जब आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर अपने हलाल रिश्ते के लिए या अपने जीवन साथी के लिए दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बत डालने वाला है और दिल बदलने वाला। वो दो दिलों के दरमियान ऐसी उल्फत और रहमदिली पैदा कर देता है जो दुनिया की कोई ताकत पैदा नहीं कर सकती। अगर आपका दिल किसी पाकीज़ा रिश्ते के लिए तड़प रहा है या आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपने जज्बों को अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद के वक्त पेश कीजिए। इंसानों से मांगना छोड़ दें, रब से मांगिए, क्योंकि जो मोहब्बत आसमानों पर लिखी जाती है उसे ज़मीन की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। और आपको पता है जोड़े आसमानों पर बनते हैं और जोड़े बनाने वाला हमारा पाक परवरदिगार है। रिज़्क में बरकत, तहज्जुद प्लस शुक्र। आजकल की दुनिया में हर इंसान जिस बड़ी परेशानी का सामना कर रहा है वो है रिज़्क और मईशत की तंगी। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक भाग दौड़ करते हैं, लेकिन फिर भी पैसों में पूरा नहीं पड़ता।
घर में अगर पैसा आता भी है तो पानी की तरह बह जाता है, बरकत नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मसला ज़्यादा कमाने का नहीं है, असल मसला बरकत का है। अगर 1 लाख रुपए में बरकत ना हो तो वो भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन अगर चंद हज़ार में अल्लाह ताला की बरकत शामिल हो जाए तो उससे तमाम ज़रूरियात भी पूरी होती हैं और इंसान ज़हनी सुकून भी हासिल करता है। यहाँ पर मेरे एक भाई के लिए ख़ास दुआ, कैसर भाई के लिए, कि अल्लाह ताला उनके रिज़्क माल में बरकतें फरमाए। वो रिज़्क के हवाले से बहुत परेशान है। अल्लाह ताला उनकी तमाम माली परेशानी दूर फरमाए, आमीन। रिज़्क में बरकत का फार्मूला, इस बरकत का सबसे बड़ा और ताकतवर तरीन फार्मूला है तहज्जुद प्लस शुक्र। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रिज़्क में इजाफे और बरकत का एक अटल कानून बयान फरमाया। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, ये अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है। शुक्र का मतलब सिर्फ ज़बानी अल्हम्दुलिल्लाह कह देना नहीं है, बल्कि दिल से इस बात का एतराफ़ करना है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरी मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि मेरे रब का फ़ज़ल है। तहज्जुद के वक्त शुक्रगुज़ारी की अहमियत। अब ज़रा गौर कीजिए, जब आप रात का आखिरी हिस्सा यानी तहज्जुद का वक्त चुनते हैं, जब पूरा शहर सो रहा होता है और आप अपने रब के हुजूर खड़े होकर न सिर्फ मांगते हैं बल्कि उसकी दी हुई तमाम नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। आप अपने रब से कहते हैं कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे सेहत दी, सर छुपाने को छत दी, तन ढांपने को कपड़ा दिया और खाने को रिस्क दिया, और मेरे हाथ पांव सलामत हैं कि मैं अपने लिए कोशिश कर सकूं। तेरा करोड़ों बार शुक्र है। जब इंसान तहज्जुद के वक्त पुरसुकून वक्त में अपने रब की नेमतों को याद करके शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला को अपने बंदे की ये अदा इतनी पसंद आती है कि वो इसके लिए गैब से रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। रिज़्क की तंगी से घबराने की बजाय रात की तन्हाई में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें और फिर जो कुछ आपके पास है उस पर दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप देखेंगे वो रिज़्क जहाँ से आने का आपको गुमान भी नहीं, वहाँ से बरकत बनकर बरसने लगेगा। तहज्जुद प्लस तवक्कुल। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे कठिन हालात आ जाते हैं जहाँ अकल काम करना बंद कर देती है। कर्ज का बोझ, बीमारी का खौफ, दुश्मनों की चालें हों या अदालत और कचहरी के चक्कर, इंसान चारों तरफ से बंद गली में खुद को महसूर पाता है। हम इंसानों के पास जाते हैं, उनसे मदद की इल्तिजा करते हैं, लेकिन अक्सर वहाँ से सिर्फ मायूसी और ज़िल्लत ही हाथ आती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अपनी खस्ता हालें लिए उस ज़ात के पास नहीं गए जिसके कब्ज़े में कायनात की हर एक चीज़ का हल है। तवक्कुल की असल हकीकत, इस फार्मूले का पहला सुतून है तवक्कुल। तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना नहीं है, बल्कि अपने तमाम जायज़ ज़राए और मेहनत को इस्तेमाल करने के बाद नतीजा मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। ये यकीन रखना कि अगर मेरा रब मेरे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। तहज्जुद के वक्त तवक्कुल की ताकत। अब ज़रा सोचिए, जब इंसान रात के आखिरी हिस्से में जब हर तरफ अंधेरा और खामोशी तहज्जुद के लिए खड़ा होता है, सजदे में सर रखकर अपने तमाम मसाइल, अपने तमाम खौफ और अपनी तमाम उलझने अपने रब के सामने खोल कर रख देता है। वो अपने रब से कहता है, ऐ मेरे मालिक, मैं थक चुका हूँ, मेरे तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन मुझे तेरे कुन फाजा कौन पर यकीन है। मैं अपने तमाम मामले तेरे सपुर्द करता हूँ। जब आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर सच्चे दिल से अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो आपके दिल से नामुमकिन का खौफ ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है जिनका आपके गुमान में भी तसव्वुर नहीं होता। वो बंद दरवाज़ों को खोल देता है और मुश्किलात के पहाड़ों को
रेज़ा रेज़ा करके उड़ा देता है। अगर आप भी किसी ऐसे मसले में फंसे हैं जिसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा, तो आज ही अपने अंदर तवक्कुल पैदा कीजिए और तहज्जुद की तन्हाइयों में अपने पाक परवरदिगार को अपना वकील बना लीजिए। वो ज़ात कभी अपने भरोसा करने वालों को रुस्वा नहीं होने देती। तहज्जुद प्लस इखलास। हम अक्सर ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि हम इतने अरसे से दुआ मांग रहे हैं लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही। हम हर वजीफ़ा करके देख लेते हैं, हर दुआ पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी लगता है जैसे असर नहीं हो रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अक्सर हमारी दुआओं में अल्फाज तो होते हैं लेकिन वो इखलास और रूह गायब होती है जो दुआ को अर्श तक ले जाती है। इखलास क्या है? इखलास का मतलब है किसी भी अमल को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करना, दिखावे से पाक होना और दिल में ये पक्का यकीन रखना कि मेरे रब के सिवा मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। जब आपकी दुआ में इखलास शामिल होता है तो दुआ सिर्फ ज़बानी अल्फाज का मजमूआ नहीं रहती, बल्कि वो आपके दिल की तड़प बन जाती है। और आपके अल्फाज बेशक सादा हों, लेकिन इन अल्फाज के पीछे दिल का सोच इतना शदीद होता है कि वो सीधा अर्श इलाही पर जाता है और अर्श इलाही हिल जाता है। और इखलास का सबसे बड़ा मुजाहिरा कहाँ होता है? तहज्जुद के वक्त। दिन के वक्त इंसान हज़ारों लोगों के सामने होता है, वहाँ दिखावे का खदशा हो सकता है, लेकिन रात का आखिरी पहर जब पूरा जहां नींद की वादियों में गुम होता है, जब कोई देखने वाला नहीं होता, कोई तारीफ करने वाला नहीं होता, तो उस वक्त आपका अपने गर्म बिस्तर से उठना और जाए नमाज पर बैठना ही इस बात का सबूत है कि आपकी नीयत में इखलास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और पुकारता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई माफ़ी चाहने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूं। तसव्वुर कीजिए, रब खुद बुला रहा है और ऐसे में जब एक बंदा सच्चे दिल से इखलास के साथ अपनी आँखों से आंसू बहाते हुए अपने मालिक से मांगता है, तो ये नामुमकिन है कि वो करीम रब अपने बंदे को खाली हाथ मोड़ दे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर जायज़ दुआ की कबूलियत का वक्त आ जाए तो अपनी दुआओं में इखलास पैदा कीजिए। सहरी के वक्त अपने दिल को दुनियावी ख्यालात से पाक करके अपने रब से वो मांगिए जो आपको चाहिए। कबूलियत का मौजज़ा आप खुद अपनी आँखों से देखेंगे। तहज्जुद प्लस नमाज की पाबंदी। हम में से अक्सर लोग अपनी ज़िंदगियों को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा इखलाक बेहतर हो, हमारे अंदर का खौफ दूर हो, ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त आए और हम एक कामयाब और बावक़ार इंसान बन सकें। लेकिन महज़ ख्वाहिश करने से ज़िंदगियाँ नहीं बदलती, ज़िंदगियाँ बदलती हैं आपके रोज़मर्रा के अमाल और आदात से। और दुनिया की सबसे बड़ी तब्दीली का फार्मूला क्या है? तहज्जुद प्लस 5 वक्त की नमाज की पाबंदी। सबसे पहले तो आपने अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़नी हैं। अपनी 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी जो है करनी है। और फिर तहज्जुद, उसमें एक इज़ाफ़ी इबादत है और अल्लाह ताला की लाडली इबादत है। अगर कोई शख्स चाहे कि वो सिर्फ तहज्जुद पढ़े और दिन की फ़र्ज़ नमाज़ों को छोड़ दे, तो वो ज़िंदगी में कभी सच्चा सुकून या तब्दीली नहीं पा सकता। फ़र्ज़ नमाज़ें इमारत की बुनियाद हैं और तहज्जुद इसकी खूबसूरत छत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। जब एक इंसान सुबह फजर से लेकर इशा तक अपने रब के सामने 5 बार हाज़िरी देता है और फिर रात के अंधेरे में तहज्जुद के लिए भी खड़ा हो जाता है, तो उसका रूह से राब्ता मुकम्मल तौर पर कायम हो जाता है। ऐसा इंसान कभी गुनाह करते हुए डरता है, उसके रवैये में आजिज़ी आती है, उसकी सोच मुस्बत होती है, उसका अपने रब पर यकीन मजबूत होता चला जाता है। नमाज इंसान के दिन को मुनज़्ज़म करती है और तहज्जुद इंसान की रूह को साफ करती है। अगर आप वाकई एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप अपनी बिगड़ी हुई ज़िंदगी को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, तो आज ही से 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी का अज़म कीजिए और इसके साथ साथ तहज्जुद की बरकतों को शामिल कर लीजिए।
आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपकी सोच, आपके हालात और आपकी पूरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। अब फैसला आपके हाथ में है। रात का आखिरी पहर हर रोज़ आता है अल्लाह की रहमत का बुलावा, हर रोज़ गूंजता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बिस्तर का लिफाफा टाएं, वज़ू करें और अपने रब के सामने सजदा रेज़ हो जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको तहज्जुद की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए और हमारी ज़िंदगियों को अपनी रहमतों से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर आपको ये पैगाम आज पसंद आया है तो अपने प्यारों तक इसे ज़रूर शेयर कीजिए। शुक्रिया।